Hello children, how are you? I hope you all are doing well and now you know the different concepts of grammar very well. So बच्चों, हमने देखे हैं nouns, हमने देखे हैं pronouns, हमने adjectives भी देखे हैं. So now what are we going to look at in this chapter? In this chapter we are going to look at verbs. So बच्चों, हमने verbs के बारे में पहले भी किया है. Verbs को क्या कहा जाता है? Action words और doing words. So देखते हैं इसमें और डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे. Okay? So hello kids, read the following sentences and notice the words in color. Okay? The lion roars. Preeti bought a ring. Arun is a student. Okay? So what does the lion do? Lion क्या करता है? It roars. What did Preeti do? Preeti ने क्या किया? She bought a ring. Who is a student? Student कौन है? Arun is a student. Okay? तो यहाँ पे जैसे words जैसे roars, bought, is, they are, so roars and bought are the actions. Okay? And is being verb. Okay? ठीक है? So the verbs roars, bought and is say what somebody or something does or is. Okay? These are called verbs. Now verbs में भी तीन तरीके के verbs होते हैं, जैसे main verbs, helping verbs और linking verbs. Okay? चलो हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं उनके बारे में. तो सबसे पहले आते हैं main verbs. Okay? The verbs in sentences 1 and 2. Okay? Roars and bought. They are what? They are main verbs. Okay, they are also called the principal verbs. तो ये main verbs है, ये main action हमें बताया जा रहा है. Okay, ठीक है, इसके लिए वो होते हैं main verbs. अब main verbs में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है transitive और दूसरा होता है intransitive. Okay, now let's look at transitive verbs. So verbs that need objects to complete their meaning are called transitive verbs. तो अगर किसी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग देने के लिए ओके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, जैसे मदर गेव मी अ चॉकलेट. तो यहाँ पे गेव वर्ब जो है ओके यहाँ पे आपको नहीं देखा एक ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है मदर. ओके, गेव मी अ चॉकलेट. ओके, तो चॉकलेट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट हियर, तो इसके लिए गेव आया वर्ड. ओके, सो गेव व्हाट? चॉकलेट. ठीक है. शुभम थ्रू द फुटबॉल. थ्रू व्हाट? फुटबॉल. तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये बन जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, इफ वी डिलीट चॉकलेट एंड फुटबॉल फ्रॉम दीज सेंटेंसेस दे विल नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. These words are objects and they are needed to complete the sense of these sentences. तो अगर हम इसमें से चॉकलेट या फुटबॉल वर्ड्स को हटा देंगे तो आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस का कोई सेंस बनेगा? जैसे हम बोलेंगे मदर गेव मी अ व्हाट, क्या दिया? या मदर गेव क्या दिया? तो सेंस तो बनता ही नहीं है. ओके, शुभम थ्रू द फुटबॉल. शुभम थ्रू व्हाट? अगर हम ऐसे ही बोलेंगे शुभम थ्रू तो will it make any sense? No. So that is why we need an object. तो हमें पता चलेगा कि उसने क्या एक्शन की है. Okay? So object is a person or a thing that receives the action of the verb. So verb की जो action होती है वो receive करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? Object की. Clear? So these are transitive verbs. Now let's look at the next type. Intransitive verbs. Verbs that do not require any object to complete their meaning are called intransitive verbs. So जिन verbs को object की ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं intransitive verbs. Okay? Let's look at the examples. The children laughed. Okay? अब इसमें तो पूरा सेंस बन रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है कि बच्चे हंस रहे. That's it. Do you need an object here? No. The children laughed. They swam in the river. ओके, तो बस हमें पता चल रहा है कि एक्शन क्या की गई है कि स्विमिंग किया गया है रिवर में. सो दे स्वैम इन द रिवर. द वर्ब्स लाफ्ड एंड स्वैम डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स. दे गिव कंप्लीट मीनिंग. So these verbs are intransitive verbs.
Okay, let's look at the exercise so that we get it very clearly now. So write whether the highlighted verbs are transitive or intransitive. जल्दी जल्दी ये रीरीड करो और let's start this exercise now. The moon was shining. Okay, तो आप मुझे बताओ कि इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं. It is an intransitive verb. It is making complete sense. Okay, by itself without any object. Okay, the moon was shining. She left her book on the table. तो यहाँ पे हमें जब हम बोलते हैं शी लेफ्ट हर बुक, ओके, तो कहाँ, तो वो बताने के लिए हमने वर्ड यूज किया है टेबल, दैट इज द ऑब्जेक्ट. सो ये बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? ग्रैंडपा laughed loudly. So this is intransitive. It is making sense. Okay. सो वैसे ही जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ो और उसके हिसाब से स्टार्ट अटेम्प्टिंग द आंसर्स. ओके, दे आर वेरी इजी, यू कैन डू इट. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स. ओके, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. हमने मेन वर्ब्स किए हैं. मेन वर्ब्स में दो टाइप्स आते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो भी कर लिए. अब हम जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स की. नाउ लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शी कैन स्पीक अ लिटिल फ्रेंच. तो यहाँ पे आप देखोगे कैन है हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड स्पीक है मेन वर्ब. क्लियर? आई एम रीडिंग अ बुक. तो एम बिकम्स हेल्पिंग वर्ब और एक्शन क्या है यहाँ पे? रीडिंग. सो रीडिंग बिकम्स द मेन वर्ब. यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंगिंग इज द एक्शन और उसको सपोर्ट क्या कर रहा है? आर. ओके, so are is the helping verb and singing is the main verb. Okay, why do you cry? Okay, तो यहाँ पे do becomes helping verb and cry becomes the main verb. Clear? He was bitten by a dog. किसने काटा? क्या हुआ उसके साथ? उसको एक डॉग ने बाइट किया. Okay, so he was bitten, okay, by a dog. So was is the helping verb and bitten is the main verb. He will come tomorrow. So will becomes helping verb and come becomes the main verb. Clear? I have done my homework. Okay, done. So action हो गई है. तो action क्या थी? होमवर्क करने की action थी, वो हो गई है complete. तो have becomes the helping verb and done is the main verb. Okay, the tree has been cut down. Has been is the helping verb, okay, and cut is the main verb, okay, action. Okay, so helping verbs help or support the main verb in expressing the time or tense of the action. So they are helping verbs. तो देखते हैं कौन से टाइप के verbs होंगे जो हमें बताएंगे कि वो है helping verbs. तो वो होते हैं verbs like am, is, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, will, would, may, might, should, must. They are all called helping verbs. So when they are used along with the main verb in a sentence, जब वो main verb के साथ use होते हैं तो वो बन जाते हैं helping verbs. Clear? Okay. So बच्चों ये हमेशा याद रखना है. Alright, so now let's do this. Fill in the blanks with the correct helping verb choosing from the bracket. अब आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है. अब इसका हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाएगा. सो हु डैश कॉलिंग यू नाउ. तो यहाँ पे आपको इसमें से करेक्ट वर्ब जो है उसको चूज करना है. ओके, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को. हु डैश कॉलिंग यू नाउ. सो ये कौन से टेंस में है? इट इज इन द प्रेजेंट टेंस. तो आप यूज करोगे हु इज कॉलिंग यू नाउ. ओके, डैश यू कॉल योर सन. डिड यू कॉल योर सन? क्लियर? ओके, do you think it will make any sense had you call your son or has you call your son? No, it is did you call your son. All right, dash you seen this movie before. Have you seen this movie before? Does it make sense? Yes, ऐसे ही आपको बाकी sentences अपने आप करने हैं. Okay, frame the sentence in your mind and then attempt it. Clear? All right, so now अब बढ़ते हैं
थर्ड टाइप की तरफ. ओके, दैट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब. लिंक करना, ज्वाइन करना. क्लियर? ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस. आई एम अ स्टूडेंट. रिया इज अ डांसर. द किड्स वर हैप्पी. दे हैव अ कैमरा. सो बच्चों, ये अबाउ सेंटेंसेस में, ये जो सेंटेंसेस हमने पढ़े, इसमें द वर्ब्स एम, इज, वर, हैव, they tell us what the subject is or has and not what the subject does. okay, तो आप अगर ये देखोगे तो हमें ये generally verbs के बारे में बता रहे. okay, these verbs are not verbs of action. ये action verbs नहीं है. they simply express the state of being. they are not helping any main verb. okay, they simply join the subject to some other words. so these are called linking verbs. तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है. आई एम अ स्टूडेंट, कोई एक्शन है इसमें? नहीं है. बट वो एक नाउन के बारे में बता रहे हैं, उसको लिंक कर रहा है. इसके लिए वो वर्ड एम बिकम्स द लिंकिंग वर्ब. सो वर्ब्स दैट लिंक द सब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट, टू सम अदर वर्ड्स, तो उसको हमने लिंक किया है विद द वर्ड स्टूडेंट. ओके, so when they verbs that link the subject to some other words which describe it are called linking verbs. तो ये जो वर्ड है स्टूडेंट, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? आई को. आई मीन्स मुझे डिस्क्राइब कर. आई एम अ स्टूडेंट. क्लियर? रिया इज अ डांसर. तो इज, ओके, वो क्या कर रहा है? डांसर. ओके, को मतलब वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? डांसर है. तो उसको लिंक कैसे किया है? बाय यूजिंग द वर्ड इज. क्लियर? सो रिया एंड डांसर वर्ड को लिंक किया है थ्रू द वर्ड इज. ओके, द किड्स वर हैप्पी. सो किड्स एंड हैप्पी को ज्वाइन किया है वर्ड. ओके, दे हैव अ कैमरा. सो दे एंड कैमरा, सब्जेक्ट एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, या जो नाउन जो है वो. सो दे हैव बीन लिंक्ड थ्रू द वर्ड हैव. क्लियर? सो इसी वजह से आप देखोगे कि ये बताते हैं हमें व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, और हैज या सब्जेक्ट के पास क्या है, एंड नॉट व्हाट द सब्जेक्ट डज. जब हम डज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्शन वर्ब. तो वो बन जाएगा हमारा, इसके पहले जो हमने किए थे हेल्पिंग वर्ब्स, तो वो उस टाइप का बन जाएगा. ओके, अब यहाँ पे हम लिंक करें. सो द वर्ब्स आर नॉट वर्ब्स ऑफ एक्शन. ये एक्शन वाले वर्ब्स नहीं है. दे सिंपली एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, सो दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स. ओके, सो दे आर नॉट हेल्पिंग एनी मेन वर्ब. दे जस्ट सिंपली जॉइन द सब्जेक्ट टू सम अदर वर्ड. क्लियर? ओके, read some more examples. Priya became happy. The man looks sad. The man seems a fool. The baby fell asleep. The night grew cold. Children made a lot of noise. Okay? So, अब हम करेंगे एक्सरसाइज ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियरली समझ जाएंगे हम लोग. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. ऑलराइट, सो underline the verbs and write LV. LV for linking verbs, MV for main verbs, and HV for helping verbs. Clear? The hunter shot an arrow at the deer. तो यहाँ पे आप देखोगे shot मतलब यहाँ पे एक एक्शन हो रही है. ओके, द हंटर shot an arrow at the deer. तो शॉट बिकम्स द मेन वर्ब. तो हमें ये मेन एक्शन बताई जा रही है. सो दैट इज वाई दिस बिकम्स योर MV. क्लियर? शॉट. वाई वर यू एंग्री? ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसको पूछ रहे हैं कि वाई वर यू एंग्री. तो आप देखोगे वर्ड जो है वो उसको लिंक किया जा रहा है एक्शन के साथ. एक्शन क्या है? एंग्री, गुस्से की एक्शन है. तो इसके लिए ये आ रहा है एज व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. वो हमें बता रहा है एक्शन ऑफ एंगर. ओके, आई वॉज रीडिंग माई बुक. ओके, वॉज रीडिंग. क्लियर? सो हैव यू ईटन योर लंच? तो आप यहाँ पे देखोगे ईटन इज द एक्शन. सो यू, ओके, हैव यू. सो हैव बिकम्स योर व्हाट इज दिस? हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? ऐसे ही जल्दी बाकी जो है
ओके उसको ये करना है। देखो अब 6th सेंटेंस देखो, 6th वन, द मैंगोज लुक राइप। तो यहाँ पे कोई एक्शन है नहीं है, बट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दूसरे वर्ड को और उसको लिंक कर रहे हैं मैंगोज के साथ, मैंगोज और राइप को लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो लुक वर्ड यूज किया है विच बिकम्स योर व्हाट इज इट, लिंकिंग वर्ब। क्लियर? अब ऐसे ही रीड दिस चैप्टर, चैप्टर को हमेशा पहले पढ़ना है, समझना है और बाद में एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करना है। ओके क्लियर? एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो, काफी इजी है ना बच्चों? तो क्विकली स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस एंड रीड द चैप्टर फर्स्ट।